How do you cater to diversity in terms of personal style and cultural backgrounds within your target audience? बिजनेस है कि आपको नहीं पता कि कल लोगों को क्या चाहिए। कोई न्यू स्टार्टअप करना है तो उसके लिए क्या कन्वीनियंट होगा, घर से करना कन्वीनियंट होगा या फिर बाहर निकलना जरूरी है? कस्टमर्स को एक्वायर करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमें लगा था पर्सनली दैट वाज हाय गाइस Hi, so I am Tabassum. विकास की हिस्ट्री। Okay, so we welcome you to the podcast over coffee and chai. So Vikas, your brand name is Shringar by Neha. Yeah. So is evocative and beautiful name. So in Indian context, इसमें बहुत important है, बहुत importance है आपके नाम का, just like श्रृंगार, right? But for you, we want to know कि what story does it tell and how does it reflect your values and philosophy? I mean, it's dedicated to my wife. I mean, she's the one who started it. I mean, we've been together for more than 10 years now, and she started this business in 2019. जब उन्होंने शुरू किया था ये, Okay. तो I guess this is when she she gave this name herself. I mean, ये कहीं और से नहीं आया. She wanted to do something like this. उसको ज्वेलरी में जाना था. She does love designing. So she thought about it and she gave it a go. तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ श्रृंगार बाई नेहा. But the name evolved with time. 2019 was the start. Yeah, we got married in 21st. We couple of years ago we got married. तो उसके बाद we kind of started evolving around it कि Okay. हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए. Then श्रृंगार double R आ गया उसमें because we wanted to have that name for sure. So Yeah. the story is all about her. I mean, she wanted to do it and I mean, she's the one. वो थोड़ा डिजाइन भी करती थी ज्वेलरीज को, तो Hmm. Yeah. श्रृंगार बाई नेहा. So everything was by Neha. So she was the Okay. one who was doing everything in the business. So speaking to supplier, design the product, or how to package the product, how to sell the product. So everything was her idea. So that is why Okay. Shringar by Neha. So this is this was the foundation by her. So she's the founder of it. You know. Okay. She is not जब here with you now? yeah, she's gonna be here very soon, right? I mean, she's not feeling well. That is why I'm, covering her for. That's it. Oh, okay. So, can you share an example of how a specific jewelry piece embodies a story or define Shringar? For me, look, I always look at her when I look at Shringar and everything because Yeah. मैं I did my engineering. मैं बिल्कुल अलग stream से आता हूँ. I love doing Yeah. businesses. I love making businesses. So business करना was a part of what I'm doing. But जो motivation है और जो भी इस business के पीछे का जो भी एक background है, it is all about her starting that, फ्रॉम हर वार्डरोब. मेरे को जहां तक पता है बिकॉज एक एफसी नाम की वेबसाइट अच्छा. है वेयर शी स्टार्टेड ऑल दिस. और हाँ. वहां पे घर में uh, जो एक यू कैन से कि एक पीछे से चला आ रहा होता है, कपड़े होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दे आर कंसीडर्ड वेरी विंटेज, राइट. तो उसने वहां से वो आइडिया लिया कि दिस इज समथिंग दैट शी वांटेड टू स्टार्ट विद. तो वहां से उसने किया और फिर वो ज्वेलरी में चली गई बिकॉज I अच्छा. mean, she loved doing makeup and stuff as well. So I don't know. तो उसको बोल them. So मेरे को लगता है कि I mean she's a very girlish woman. So I guess Yeah. that's how she started it. I guess. और जब से हम मिले हैं, I mean even when she was 21, now she's 31, I'm 32. So it all started when we met for the first time as well. So I'm pretty much aware कि इसके अंदर हमेशा से कुछ ना कुछ तो था and she wanted to do it, you know, एक करियर की तरह भी. So she started it eventually. तो वो डिजाइन आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब हाउ डू यू बैलेंस ट्रेडिशन विथ मॉडर्न रेलिवेंट पीसेस? ये जो डिजाइनिंग है, जैसे अगर हम कोई ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इट डेफिनेटली, मैं बताऊं तो यू कांट जस्ट डिजाइन ए ज्वेलरी बिफोर द डाइज प्रिपेयर्ड. होता क्या, डिजाइन में या. डाइज प्रिपेयर होता है. तो उस केस में होता क्या है, समटाइम्स जब डाई बनाने जा रहे होते हैं तभी आपको पता चलता है कि किस तरह का डिजाइन आप लेके आएंगे. बट देयर इज अ पैटर्न दैट यू ट्राई टू फॉलो. सपोज इफ somebody is coming up with something very new, now you try to
get motivation from there, you get the inspiration from there कि किस तरह की चीज, मतलब मान लो अगर कोई चीज हमें पसंद आती है तो we simply get inspired, right? तो हमारे दिमाग में एक आइडिया Yeah. होता है कि ऐसी कोई ज्वेलरी हमें चाहिए। सपोज मेरी माँ का एक की रिंग है जो सिल्वर की रिंग है, राइट? Okay. Yeah. नाउ शी वाज गिवन दैट, तो एक आइडिया वहां से भी आया। नाउ शी इज गोइंग टू गेट इनटू सिल्वर एज और उस तरह की ज्वेलरी डिजाइन करके उस तरह की की रिंग जो डिजाइन करेगी, राइट? तो इस तरीके से आइडियाज आते हैं कि यू सी समथिंग एंड देन यू गेट इंस्पायर्ड, यू गेट द आइडिया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, देन यू गेट बैक टू ड्राइंग बोर्ड। वहां पे क्या करते हो, यू टॉक टू योर मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरिंग Hmm. में आपकी उसके साथ बैठते हो एंड दे ट्राई टू प्रिपेयर अ डाई। तो वहां पे जो बेस्ट डिजाइन निकल के आया था उस डाई बनाते वक्त, नाउ दैट इज समथिंग योर डिजाइन। So you simply can't make everything. I mean, जिस तरीके से उसने अभी तक start किया है, we have the idea, we keep something in our mind, and then we go to our manufacturers, and then we spill everything out in front of them, और वो decide करते हैं कि कैसे और क्या करना है, और they come up with the idea, और हम कुछ ना कुछ डिजाइन पे काम करते रहते हैं। और एट द सेम टाइम Okay. कोई और भी है जिसके पास अच्छी डिजाइन हैं तो हम वहां से भी लेके आते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग समवन एज वेल, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन। अगर किसी के पास Yeah. बहुत अच्छा है तो वी ट्राई टू गेट दैट एज वेल, एंड वी आस्क देम फॉर द परमिशन कि हम उसे बेच सकते हैं कि नहीं, वी कैन वी बी द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एज वेल। तो इस तरीके से मीन करते Yeah. हैं। इट्स ऑल अबाउट अप्रिशिएटिंग ज्वेलरी इन दैट सेंस Yeah. कि अगर कुछ भी बहुत अच्छा सा है और हमें अच्छा लग रहा है तो वी सिंपली ट्राई टू गो बिहाइंड इट, Yeah. वर्क Yeah. करें। सही है, ये सही बात है। तो तो आप लोग अपने कोर वैल्यूज को एज अ श्रृंगार ट्रांसलेट कैसे करते हो? ब्यूटी, एडोरमेंट, पर्सनल एक्सप्रेशंस, जो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को शो करता है। तो ऐसा हमने कुछ सोच के तो स्टार्ट नहीं किया था कि मतलब लेकिन जैसे जैसे आप एक टीम बनाते हो तो यू यू क्रिएट अ वैल्यू, आप एक वैल्यू बनाने की कोशिश करते हो कि दिस इज हाउ यू गोइंग टू गो अहेड विद। तो पहला जो हमारा था कि हम आपको डिसाइड करने देते हैं कि हाउ यू वांट टू बी योरसेल्फ। हम हमारा कोई ऐसा टेम्पलेट नहीं है कि इट्स ऑल अबाउट लाइक यू फॉर यू। तो इट्स जस्ट ओके। वी डिजाइन समथिंग। सपोज अब जैसे ये एक प्लेटिनम रिंग है, राइट? ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया सपोज, ओके? तो आई नीडेड समथिंग, मेरे को ये चीज बहुत पसंद है, राइट? अब मेरे घर में किसी ने पहना नहीं बट आई वांटेड टू हैव इट। तो द आइडिया वाज कि शी एप्रिशिएटेड। तो इट्स ऑल अबाउट एप्रिसिएशन। अगर किसी को कुछ पसंद है, राइट, तो वी जस्ट डोंट फोर्स देम टू वियर व्हाट वी हैव, वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग। तो हम हमेशा ऐसे करते हैं कि इवॉल्व होते रहना है। तो हमारा जो वैल्यू है जिसके हम आसपास चलते हैं कि हमें ही सब नहीं पता है, एंड विल ट्राई टू लर्न एवरी सिंगल डे। तो नो मैटर व्हाट कम्स अप, अगर कुछ आ रहा है तो विल ट्राई टू गो एंड इवॉल्व आवरसेल्व्स अकॉर्डिंगली। तो जो वैल्यू है हम इसके अराउंड काम करते हैं। वी जस्ट ट्राई टू मोटिवेट आवरसेल्व्स कि हमारा काम है डिजाइन करना, या हमारा काम है इस बिजनेस को बढ़ाना, लेकिन इस रास्ते में हमें कुछ अच्छा लग रहा है तो हम उसे अप्रिशिएट करेंगे और उससे सीखते हुए बिजनेस को बढ़ाएंगे। सो वी डोंट से कि वी आर द बेस्ट, but we are trying to learn from everybody along the way. तो एक तरह का ये कोर वैल्यू है जिसपे हम कर रहे हैं, और बाकी जो वैल्यूज हैं वो टाइम के साथ बनती है। सपोज अभी मैं और वो हैं, राइट, और मुझे अगर कुछ देयर इज नो वैल्यू दैट यू हैव टू क्रिएट, बिकॉज between husband and wife we both know कि कैसे करना है, क्या करना है। when you become a team then you try to let people know कि हम क्या expect करते हैं, and then sort of value creates itself. लेकिन अभी क्या है कि अभी इट्स ऑल अबाउट जस्ट डूइंग बिजनेस। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो शी जस्ट टेल्स मी कि लुक दिस इज समथिंग दैट इज नॉट टॉलरेबल। अगर मतलब सपोज मैं अपना कोई मार्केटिंग आइडिया लेके आता हूँ तो शी इज प्रीटी मच जेन्युइन अबाउट दिस। तो प्रीटी मच यू नीड टू बी ओरिजिनल। एट द सेम टाइम अगर हम कुछ कर रहे हैं किसी और का कर रहे हैं तो वी जस्ट लेट एवरीबॉडी नो। Yeah, this is really very appreciating. So what according to you beauty is? I look at my wife, that's it. That's how it is. That's a good answer. You don't have to define anything. She looked at me, she married me, and so I don't know why she married me. उसने क्यों करी शादी, so beauty is something that, for me, suppose you speaking to someone, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, right, और Right. you find beauty yourself. आपको क्या अच्छा लग रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है,
I mean the way I speak, the way you speak, or the way somebody else speaks, और जो मेरी पर्सनालिटी है वो किस सिचुएशन में कैसी है, राइट? एंड इफ यू आर लाइकिंग इट, so that's pretty much beauty for me, है कि मतलब I mean that's how you जज समझ ब्यूटी। और कई बार होता क्या है कि जैसे हमने श्रृंगार करा है, ठीक है, तो हमने Yeah. इस तरीके से करा है कि जैसे आई लाइक माई वाइफ इन साड़ी, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो उस हिसाब से जितनी ज्वेलरीज Okay. हमने उसको उसको उस तरीके से बनाया। फिर एक ट्रेडिशनल यू नो परिधान है जो जिस पे ज्वेलरीज जाती हैं। उसके बाद एट द सेम टाइम नाउ वी कम इनटू मॉडर्न ज्वेलरी, जहाँ पे कोरियन डिजाइन भी होते हैं, उस तरीके से भी चीजों को बनाते हैं। तो ब्यूटी इज ऑल अबाउट हाउ यू simply look at someone at a particular moment and you know how you really wanna go about it। अभी मेरा मूड कैसा है, मेरे को सामने वाला कैसा दिख रहा है, कैसी बातें कर रहा है, and sometimes you simply you know it clicks your mind। I mean जो मुझे लगता है beauty is something that for me it's pretty much it's her, that's it, nothing else। ज्यादा मैं बोल भी नहीं सकता हूँ because she'll see and I don't know, so I don't know। Okay. So, what kind of product do you offer within the realm of Shringar? ओके, अभी हम ज्वेलरीज में थे। पहले शी स्टार्टेड विद ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, तो मेरे को जहाँ तक लग Okay. रहा था कि इट वाज ऑल अबाउट स्टार्टिंग द बिजनेस अप, बिकॉज शुरू में होता क्या है, व्हेन यू स्टार्ट समथिंग इट टेक्स नॉट ओनली मोटिवेशन, इट टेक्स मनी आउट ऑफ यू एज वेल। आपको पता Yeah. है कि इट्स ऑल अबाउट Hmm. पुटिंग मनी इनटू द बिजनेस, राइट? एंड इन बैक 2019 शी वांटेड टू डू इट इन यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट, क्योंकि वहां पे आप थोड़े सामान भी ले आते हो, तो इफ द सामान इफ द प्रोडक्ट इज गुड और आपकी एक डिजाइन है, दो डिजाइन है, सो यू कैन गो एंड यू कैन सेल इट। लेकिन आप अगर Yeah. किसी ब्रॉड मार्केट में आते हो, देन यू नीड मोर मनी टू इन्वेस्ट एंड देन यू कैन Hmm. थोड़ा सा आपको एडवांस कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो Hmm. हमने हुआ क्या कि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ उसने स्टार्ट किया था, जिसमें नेकलेसेस थे, जिसमें इयरिंग्स थी, uh, और दैट वाज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज चीजें बनी थी। लेकिन धीरे धीरे हमने Yeah. एडी अमेरिकन डायमंड्स को लाना शुरू किया। Okay. Swarovski Um. was the motivation behind it, that's what I know। थोड़ा थोड़ा कि that's where you know it came कि हम यहाँ पे एक ब्रांड ऐसा बना सकते हैं। that was the whole idea जब शुरू किया था, कि कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, वी हैव मैन्युफैक्चरर्स, वी हैव डिजाइनर्स, हम खुद भी छोटा Hmm. मोटा उसमें मॉडिफिकेशन और डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो that's what we wanted to do। और उसके बाद हमने इवॉल्व करा है। 2000 आई वुड से 2019 से 21 तक हमने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पे काम करा है। उसके Okay. बाद अमेरिकन डायमंड हमने 2000 आई वुड से 22 या 23 में हमने पूरी तरीके से उसको फुल फ्लेज स्टार्ट किया है। नाउ वी आर इनटू टॉक विद कपल ऑफ मोर मैन्युफैक्चरर्स। हम लोगों को ऑन बोर्ड ला रहे हैं कि नाउ वी आर प्रीटी मच कन्विंस्ड कि हमें अमेरिकन डायमंड में करना है, राइट? अब उसमें कुछ भी Okay. हो सकता है एंड देन वी जैसे मैंने बताया कि इवॉल्व होना ही हमारा काम है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम यही Hmm. करेंगे। वी कैन गो इनटू कुंदन, वी कैन गो इनटू मीनाकारी, जो मुझे थोड़ा बहुत पता है। लोग तो वेरी मच आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ ज्वेलरी, तो बट मेरे को ये आइडिया पता है कि जो जो चीजें हैं मार्केट में, वी ट्राई टू स्टडी इट एंड देन वी गो अकॉर्डिंगली। So, my next question is, Shringar is your full-time work or is this your side hustle? आप No, लोग no, के no, टास्क no, से I डिवाइड can't कर dare to say that। I can't dare to say that, It's not a side hustle for me. It's pretty much everything to us now. It's a part of what we do। I mean, look, for me, running a business is everything, and I run a couple of things, at the same time. so I then do have an IT how company, it's you a very small divide your company। time and manage the work together? I mean, we are together, so we don't have to manage. We do everything together. I mean, she's with me all the time. I'm with her all the time. We do have an office set up. We go there every single morning because we have to dispatch orders, right? So we get up at Yeah. around 6, 7 o'clock in the morning, and we get things done by 11, 12, 1 o'clock in the afternoon. Then we pretty much get into, you know, in talk with manufacturers, designers, and then we wrap एट द सेम टाइम हमारा सामान आ रहा होता है, लोड अनलोड करना, चीजों को करना। फिर उसके बाद एंड देन आई सिंपली गो फॉर माई मीटिंग। थोड़ा बहुत जो आईटी का थोड़ा बहुत हमारा काम है, आई ट्राई टू वर्क
there as well. So, but that's how it is. And then we just simply wrap up the day at around 10, 11 o'clock, 12 o'clock at night. But ऐसा कुछ होता नहीं है. You'll know that sometimes we simply have heated, conversation as well between us because of the business. Yeah. अगर कहीं से मेरी तरफ से कोई ज़्यादा fault होती है तो you can understand. So I'm always going to be the one Okay. taking the blame. So that's how it is. Okay. That's good. So, who is your ideal customer and what are their value and aspirations? I mean, pretty much whomsoever is willing to pay me, I'm pretty much ideal customer for us. For me, मेरे लिए तो ऐसा ही है. लेकिन at the same time, I mean, अभी ऐसा है कि I mean, we are into women's jewelry, so pretty much every woman, whomsoever is interested in jewelry, they are pretty much our ideal customer. अभी क्या है कि we are लेकिन तो अपने लिए तो आइडियल कस्टमर वुमेन आर दी आइडियल कस्टमर अभी के लिए नाउ whether they are married unmarried or I mean it's for everybody, so it caters everything or everyone as well, so pretty much for women and all ages of women. So, how do you cater to diversity in terms of personal style and cultural backgrounds within your target audience? We decide among ourselves कि हम किस तरीके से जाना चाहते हैं बिकॉज अभी हम ई कॉमर्स मार्केट में हैं राइट. जैसे नाउ वी हैव कपल ऑफ क्लाइंट्स, वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू have clients from Dubai as well, right? So she's pretty much 50 years old woman, right? She's our client, and what happens is she's a reseller as well. तो वो हमें बताती हैं कि उनको क्या चाहिए एंड वी हैव थिंग्स एंड वी लेट हर डिसाइड कि उनको क्या चाहिए और उस हिसाब से हम उनको कैटर करते हैं. बट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि यू आप आपको बस पता होता है, जैसे होता क्या हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से ये एक एज ग्रुप के लिए ज्वेलरी है, बट anybody can come and anybody can buy and anybody can gift it to anyone, right? Yeah. तो हम रखते हैं हर तरह की चीजें, but as of now we are not into. Once we create our own website and we are pretty much running our own thing, then we can have sections accordingly. But abhi kya e-commerce platform pe you don't have that liberty. The only thing that you can do, you can list your products and you can sell it. Okay. Yeah. अपने कुछ पर्सनल कस्टमर्स हैं, जैसे हम एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, तो वी ट्राई टू take part in as many exhibitions as we can. As of now, we have started with couple of exhibitions or 3, and now we are going to take part in another exhibition as well. That's going to be on 24th of this month. तो वहां पे वी ट्राई टू नो कि किस एज ग्रुप को. अब क्या होता है कि मान लीजिए हमें जैसे पता है तो इट डजंट मैटर कि मुझे जो चीज पसंद है वो मेरी उम्र के लड़के को ही पसंद आएगी, है ना. एट द सेम टाइम सेम हैपेंस विद वुमेन टू. तो हम वहां पे जाके वी ट्राई टू रीड पीपल की कौन क्या ले रहा है और किस एज ग्रुप के लोग क्या पसंद कर रहे हैं. तो नेक्स्ट एग्जीबिशन जो हमारा होता है, क्योंकि आप ये तभी करते हो जब आपके सामने कस्टमर होता है. Right. कई बार ऑनलाइन यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि लोगों को क्या पसंद है. वहां पे हमें बस पता होता है कि क्या बहुत ज्यादा बिक रहा है. बट वो हमको लगता है बीइंग फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, मेरे को लगता है कि जो चीज की ज्यादा विजिबिलिटी है दैट गोज ऑन टॉप. बट यहाँ पे जब आप एग्जीबिशन लगाते हो, व्हेन पीपल कम एंड दे आस्क यू फॉर समथिंग, सपोज समबडी इज लुकिंग एट अ पेंडेंट, अगर एडी पेंडेंट है और उसके बारे में वो पूछता है कि नहीं मुझे इस तरह का कुछ चाहिए, डू यू हैव समथिंग लाइक दिस फॉर मी, देन यू sort of feel I mean get the idea कि कहाँ पे कौन सी चीज चाहिए और इनको ये चीज पसंद आ रही हो सकता है. हमको जो लगा हो कि ये अच्छा लगेगा, हमने वहां पे लगा दिया, बट somebody comes in and they are like नहीं ये तो चाहिए ही नहीं, ये वाले सेक्शन में जाना है. तो we get the idea कि नहीं अब ये वाले सेक्शन पे हमें काम करना चाहिए when we get into exhibitions and stuff. So that's how we get the idea, and it's pretty much learning process every single day. So you cannot that's what I'm trying to say कि every single question of yours is all about is like कि मेरे को तो यही पता है कि अभी आप क्वेश्चन पूछोगे, once I'll go into the market then I'll get to know कि हो क्या रहा है, and then we'll do what people need, and that's very moving. Okay. And sometimes क्या होता है, ज्वेलरी देख के लोगों को लगता है कि उनके ऊपर अच्छा लगेगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव एन आइडिया कि आपको क्या पसंद आ जाएगा. once you look at it and you get the idea, अच्छा ये चीज अच्छी है और I shall give it a try. Right. We often do that. Yeah. मेरा ऐसा है नहीं कुछ भी, मैं ग्लासेस एक दो बार ट्राई कर लेता हूँ, that's how I am, but
women I have seen ki they try to do it, even boys as well. If you like something, Yeah. you simply go and you explore in the market कि क्या आपके ऊपर अच्छा भी लग सकता है. तो ये बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं, और हमने ये देखा भी है क्योंकि मेरा ऐसा है जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस करा है लास्ट के 4 इयर्स में कि कोई भी डिजाइन चलता है. ऐसा भी हुआ है जो हमने देखा है मार्केट में. इट्स ऑल अबाउट बीइंग मोटिवेटेड कि आपको गिव अप नहीं करना है. यू कम अप विद द डिजाइन, इट विल रन फॉर श्योर. क्योंकि Yeah, हर तरह के लोग हैं, यू नेवर नो कि एक ही डिजाइन को सभी पसंद करेंगे. that's right. So diversification should be in your designs. For me, it's all about having multiple designs at the same time, so you never know who's going to come and what they are going to like. So you need to be pretty much ready with everything that you have. And if you do that, you're gonna rock no matter what. That's what we believe in. Okay. So, do you offer customization options or personalized touches to connect with customers on the deeper Yeah, level? as of now, we do it on Etsy. It's one of the website where you can create your own listing according to your preferences. Like if Okay. we do give customization, suppose if we are giving 18 inches chain to someone with a pendant, right? But if they want it to be 24, so they can ask for us and we can simply go ahead and we can customize it accordingly. But if we are Okay. doing it, we simply put it in there. But for customers of ours, जैसे exhibitions में जा रहे हैं, if you're going to speak to our client in Dubai, those couple of clients, so they tell us their preferences. हम उसके हिसाब से उनको चीजें बना के देते हैं. Suppose there is a design that we like it and then we give it to them. तो उसमें होता क्या Hmm. है कि वो अगर कुछ changes चाहते हैं तो we simply go and we look for it, we rectify it and then we come back and we give it to them. Sometimes they don't like it, sometimes they like it. होता क्या है कि कई बार उन्होंने जो हमें बताया है हम उस हिसाब से लेके आते हैं चीजें, तो उनको ज्यादा अच्छी लग जाती है. कई बार क्या होता है कि उन्हीं को जो चाहिए हम लेके आए और थोड़ा सा 19-20 हुआ तो दे काइंड ऑफ कि नहीं, तो हमें फिर से चेंज करना. तो कस्टमाइजेशन इज समथिंग दैट अगेन कम्स अप कि जब हम पर्सनली किसी से डील कर रहे हैं या इफ दे डू हैव द ऑप्शन कि आप वहां से चूज कर सकते हैं. बट बेसिक Okay. डिजाइन हमारा सेम रहता है. जो हम एसेसरीज पे ऐड करते हैं या सपोज इफ वी आर पुटिंग समथिंग एल्स इन देयर और अगर उसे Okay. थोड़ा बहुत चेंज करना है तो प्रीटी मच प्रोवाइड दैट सर्विस. नो इश्यूज विद दैट. Okay. आगे So, हमारी वेबसाइट आएगी तो वी डू हैव दैट प्लान कि हम उस हिसाब से करेंगे कि सपोज इफ यू यू नो आप एक ज्वेलरी सेट रेडी कर रहे हो तो यू विल hmm. हैव लिबर्टी टू कस्टमाइज ऑन आवर ओन वेबसाइट कि आपको कहाँ पे क्या चाहिए एंड यू विल बी एबल टू सी वया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहाँ पे क्या कैसे कैसे क्या हो सकता है और उस हिसाब से वी Yeah, ट्राई टू कम अप विद दैट. सो दैट्स that व्हाट यू will कैन become डू व्हेन much यू more. डू हैव योर ओन वेबसाइट. But platforms like e-commerce platforms, we are pretty much fortunate कि we do have the opportunity to go and at least see कि market में value है उस चीज की, people are buying it, so it's a good market, it's a big market, and it's pretty much okay to be the part of it full time as well. I'm telling you. I mean, अगर मैं अपना IT अगर जो मैं कर रहा हूँ because it's a part of my life, so I cannot just let it go. But uh, being a businessman, that's what I can say कि ये काम इतना अच्छा है कि you can do it completely, yeah, every single day of your life, no problem, and you can evolve it and you can make it a unicorn as well. There is no uh, surprising that. I mean, ये बहुत अच्छा है. Okay. जैसे Jiva है. I mean, I've seen Jiva as well. I've seen Swarovski, as I told you. So Swarovski is all about having artificial diamonds with them. That's it. Hmm. That's live, lab made jewelry. So there is nothing surprising that they are doing, but they do have their name, so we Yeah. can do it. And this is a bigger market to do it. Okay. So, what marketing strategies do you utilize to reach your target audience and showcase your brand values? Pretty much what is going around. Suppose if there is a festive season around, if somebody is looking for a particular day, suppose sometimes we I mean the liberty that we do have on the e-commerce platform that we can put our words in there. So search Yeah. engine optimization is something that we really take seriously. And I do take seriously. So we simply put things accordingly what's going around, what is the day to day, and if we are doing something for next 1 month, we optimize things every single day. So we kind of look at what people are looking at. We do have our business dashboard as well, so we see कि हमने जिस तरह की लिस्टिंग करी है उस पर व्यूज कितने हैं, मतलब लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कन्वर्जन क्या है. So we look at every Hmm. single thing before we make any change. So जो
मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, अगर जैसे हमारे खुद के कस्टमर्स हैं, तो मैक्सिमम कस्टमर्स को एक्वायर करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमें लगा था पर्सनली, दैट वाज द एग्जीबिशन। और उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। यू सिंपली गो एंड यू लेट पीपल चूज व्हाटएवर दे वांट टू, समटाइम्स यू गिव देम फॉर नथिंग थिंग, वो खुश हो जाते हैं एंड दे लव इट। हमने अपने जितने भी कस्टमर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमने उनको अपने नए ज्वेलरीज जो रेंज है उनको ऐसे ही भेजना स्टार्ट किया। सो व्हाट हैपेंस इज दे सिंपली love that as well. At the same time, there is nothing wrong in trying new things when you have to pay for that too. तो उसके बाद क्या होता है, they recommend people to buy from us. तो इस तरीके से भी Yeah. हम चल रहे हैं। तो pretty much now we have become a team, तो हम एक दूसरे की थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं इस तरीके से कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। Now everything comes from her though. I'm telling you this. Yeah. So, how do you engage with your customers and build community around your brand? Now, as of now, for local people, we have created our WhatsApp group, right? We do have our Instagram Yeah. page as well. So, for the people we do not know, we try to send them everything in our customized packet. So, it does Hmm. have our social media pages. So, if somebody does have a complaint, सपोज ई कॉमर्स पेजेस पे होता क्या है कि आप वहाँ पे रेटिंग डाल सकते हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो तो रिटर्न कर सकते हो, बट इवन Hmm. आफ्टर दैट इफ यू डू हैव समथिंग टू से टू अस, you can simply visit to our Instagram page and you can write whatever you want to write and then we'll work on that too. तो एक तो ये तरीका हो गया, लोकल कस्टमर से व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया, और Hmm. हो गया पीपल कॉल अस एंड लेट अस नो कि ये दिक्कत थी या ये सही है, अब हम फिर से मिलना चाहते हैं। तो हम फॉर्चुनेट है कि अब यहाँ पे अब हमने 8 से 9 महीने हुए हमें वापस से पूरी तरीके से फुल फ्लेज करने में इस बिजनेस को। Okay. तो इसमें क्या है कि पीपल कॉल अस एंड वी आर हैप्पी अबाउट इट कि पीपल आर कॉलिंग अस और हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे आना चाहते हैं, हमसे कह रहे हैं कि आपका कोई स्टोर भी है। तो वी डू नॉट हैव अ फिजिकल स्टोर एज ऑफ नाउ, वी डू हैव आवर इन्वेंट्री, जहाँ पे हम इन्वेंट्री को रखते हैं, जहाँ पे हम कभी कभी लोगों को अलाउ करते हैं कि वो आके ज्वेलरी देख सकते हैं और दे कैन Okay. चूज। मैक्सिमम टाइम हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, हम वहीं पे लोगों को देखने देते हैं चीजों को और दे कैन चूज इट फ्रॉम देयर। Okay. So, what are your aspirations for the future of Shringar by Neha? I mean, just keep going. I mean, with it, you never know. Sky is the limit. So I'm not setting anything up for us. We just want to make sure कि हम अपना बार रोज ऊपर करें. We just don't get comfortable with anything. I mean, suppose if we are getting good orders, we are not comfortable with it. We are getting good customers, we are not comfortable with it because there is something you can always improve, right? So you don't Okay. have to. Yeah. तो Yeah, हमारा absolutely. एक्सप्रेशन ये है कि कल आज से कल और बेटर करना है because we never know. So, are there any social or cultural causes you wish to support through your business? I mean, अभी ऐसा कुछ तो नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि अभी ये बिजनेस इतना अच्छा हो जाए कि व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग कि आप इस बिजनेस से काफी चीजें चेंज कर सकते हैं। पहला तो मुझे जो लगा था इम्पोर्टेंट है, जैसे अगर मान लो मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ तो जिसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मेरे अलावा और लोगों को मिलता है जो उस बिजनेस में आके जुड़ते हैं, चाहे वो Right. हमारा पैकिंग करने वाला बंदा हो, चाहे वो हमारी मार्केटिंग का बंदा हो, चाहे वो हमारी फैमिली में कोई टैलेंटेड बंदा हो जिसको कुछ आता है। हमें नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, बट ही और शी कैन ज्वाइन अस टीम मेंबर। तो वो एक अभी हमारे लिए वो है कि हम जो चेंज ला रहे हैं आसपास घंटे के लिए, आपके पास अगर कुछ भी हो तो आप उसे दे दो, के पास आके कुछ सीखेगा। तो वेरी मच हैप्पी अबाउट इट कि व्हेन यू डू समथिंग लाइक दिस पीपल ट्राई टू कम एंड वो चेंज आने लगता है। तो यू डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग, इट सिंपली हैपन। अब मैं कुछ कर रहा हूँ तो इट विल डेफिनेटली चेंज समवन्स लाइफ फॉर श्योर विद अस। Okay. So, what makes a good logo for your brand? When we designed it ourselves, श्रृंगार जैसा लग रहा था। मेरी वाइफ को बटरफ्लाईज बहुत पसंद है, घर में एक दो लाइट भी बटरफ्लाई वाली हैं, तो वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग। तो मैं जब डिजाइन कर रहा था तो उसको था कि बटरफ्लाई कहीं लेके आना है, तो मैं तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो आई के ऊपर डॉट होता है, I created it from there. So that's all happened, or it all happened in matter of half an hour. So we decided कि this is we are going to go, क्योंकि लोगों से ज्यादा हमें लगा कि हमें जहाँ पे हमारा काम है वो ये है कि बिजनेस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। we just wanted to हाँ. understand our business की स्ट्रेटजी किस तरीके से, क्योंकि अभी भी हम रोज सीख रहे हैं। इट्स नॉट कि we have cracked the code कि इस तरीके से बिजनेस चल जाएगा, बिकॉज इतना अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है कि आपको नहीं पता ये कल लोगों को क्या चाहिए। लेकिन लोगों को चाहिए ये Right. पता है, बट क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, वी डोंट नो। तो वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। और सच बताऊं तो हमारे घर भी जैसे हमने कभी ज्वेलरीज मंगाई है तो वी जस्ट डोंट लुक एट द लोगो,
We simply look at the quality of the products that they are sending us and we are receiving. आपको मैं बताऊं कि हमने इस तरीके से काम स्टार्ट किया है कि हम मार्केट में हमने एक चीज बनवाई, वो 12 से 13 रुपए की बनती है, चेन की कॉस्ट हमें 8 से 10 रुपए पड़ती है, तो वो प्रोडक्ट ही हमारा 30-32 रुपए का पड़ जाता है हमको ले दे। लेकिन हम जब उसको बेचते हैं तो हम उसमें भी मेक श्योर करते हैं कि क्योंकि जो कस्टमर है हमारा, उसकी रिटर्न फीस हमारी 150 रुपए होती है और हमें कुछ मिलता नहीं अगर वो वापस आ जाए। तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि हम उसमें कुछ भी छोटी छोटी गलती भी नहीं करते हैं। वी जस्ट मेक श्योर कि कस्टमर को हम पूरी तरीके से उस चीज को दें। तो हमारा ध्यान पूरा इस तरफ रहता है कि हम जो हमारा बिजनेस है वो चल कैसे रहा है। बिकॉज आई वर्क ऑन मल्टीपल लोगोज। मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने वाली कपल ऑफ कंपनीज के लिए मैंने काम किया था जब मैं उनका लोगो डिजाइन करवा रहा था अपनी कंपनी में। तो होता क्या है कि आपका फाउंडेशन या अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है तो लोगो इज समथिंग दैट आई एम नॉट श्योर कि बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। यू नो, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मुझे Yeah. काम नहीं करने देगी, आप ऐसे समझो। ठीक है, आई नीड टू कीप वर्किंग। Okay, we got your point. So, how do you know if your branding is working? आई मीन ई कॉम पे तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जस्ट द विजिबिलिटी, आपकी रेटिंग्स कैसी हैं स्टोर के। स्टोर पे अगर लोग अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो एनीबडी इज गोइंग टू बाय, राइट। बट जैसे हमारे जो पर्सनल कस्टमर्स हैं, अगर वो कुछ लाइक कर रहे हैं तो आपको पता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे हमारे कुछ टैग्स, हमारे को लोगों ने टैग करा अपने वीडियोज में ना हमारे प्रोडक्ट्स को देख के, तो यू काइंड ऑफ फील गुड अबाउट इट, जो मेरे को समझ में आ रहा है। कैन यू हियर मी? यू काइंड ऑफ गॉन। Okay. So, what message do you hope to convey to your customers and the wider community through your brand? जो भी आपको दे रहे हैं वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। और अगर इफ यू डोंट लाइक समथिंग यू जस्ट हैव टू टेल अस। इफ यू लाइक समथिंग यू जस्ट हैव टू टेल एवरीबॉडी एल्स। यू जस्ट हैव टू कम बैक टू मी, यू डोंट हैव टू कम बैक टू अस, यू सिंपली गो टू पीपल एंड टेल देम कि यार बहुत अच्छा है बट कुछ अच्छा नहीं है तो प्लीज कम बैक टू अस एंड प्लीज डोंट टेल एनीबॉडी। हम उसको सही करके आपको दोबारा दे देंगे। Yeah. Okay. So, can your brand make people feel something different? ज्वेलरी, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम इतने बड़े ब्रांड हैं नहीं, राइट। तो अभी क्या है कि हम जो ज्वेलरी डिजाइन करते हैं वो ज्वेलरी लोगों को पहन के मजा आने लगे, क्योंकि वंस यू बिकम, जैसे तनिष्क है, राइट। आई मीन अगर यू नो, so people like to go to Tanishq because it's a brand, Yeah, right? People know it everywhere. हम अभी that's ई-कॉम right. पे हैं Yeah. हमारे, हाँ, लेकिन हमको इतना पता है कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, राइट, आई मीन यहाँ पे हम रहते हैं काइंड ऑफ, यहाँ पे 30-32 सोसाइटी, 2.5 लाख लोगों की फैमिली रहती है यहाँ पे। इट्स अ क्वाइट बिग प्लेस। यहाँ पे कुछ लोग अब ऐसे हैं, दे ट्राई टू लुक फॉर अस। तो अभी हमारी जो सिचुएशन है वो हम इसी में प्राउड है कि हमको लोग जानने लगे हैं। तो वी डोंट नो कि ये कितना बड़ा ब्रांड है, यू नो, हम कितना बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जिनको हमने सामान दिया है दे आर लाइकिंग द प्रोडक्ट और वो हमें इसी तरीके से कॉल करते हैं, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप, जो हमारा चैनल है या हम जिस चैनल के थ्रू लोगों से बात करते हैं, नो कि श्रृंगार भाई नेहा से ही बात। और मैं आपको बताऊं कि द ब्रांड इज समथिंग दैट वी आर नॉट प्रीटी मच फॉन्ड ऑफ एज ऑफ नाउ, क्योंकि होता क्या है कि ब्रांड के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के रखा है कि हमें ये ब्रांड चाहिए, बट यू नेवर नो इफ यू गोइंग टू गेट इट, राइट। बट इट डजंट मैटर कि बिजनेस ही नहीं करना है। तो सपोज अगर ये ब्रांड नेम हमारा अप्रूव नहीं होता है फॉर सम रीजन, XYZ रीजन, कोई और श्रृंगार के साथ आ जाता है एंड दे आर लाइक कि हमें ये लेना है, तो व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमने यहाँ पे एक पर्सनल कनेक्शन बनाया हुआ है कि पीपल नो माय वाइफ नेहा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। श्रृंगार इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, नेहा इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो नेहा को लोग जान रहे हैं, तो हमारा था नेहा इसीलिए लगाना था कि सपोज अगर श्रृंगार अप्रूव नहीं किया तो क्या हम कोई नंबर लेके आ जाए, क्या पता हमें कुछ नंबर ना समझ में, हम उस पर 97 13 नंबर डाल दे, 13 बाई नेहा, यू नेवर नो। Right. नेहा इज द मेन इंस्पिरेशन, इट्स नॉट श्रृंगार, इट्स नॉट द बटरफ्लाईज, इट्स नथिंग एल्स, इट्स जस्ट द नेहा। जो आप देख लो नेहा, तो जो भी हम ब्रांड जाएंगे दैट विल बी इंस्पायर्ड बाय नेहा, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी इसीलिए हम जो ब्रांड नेम है, आई एम नॉट वेरी मच कीन टू टॉक अबाउट दैट। अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट है कि जो मेरी वाइफ ने जो काम स्टार्ट किया है एंड वी हैव डन इट टुगेदर नाउ एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 18-19 months now, so we are happy about it.